Hello and welcome to the lecture series on engineering mathematics. This is lecture 5. In this lecture, we will study how to find the inverse of matrices. In this lecture, we have tried to find the inverse of the different matrices by some tricks and one method which is already you have known. So let's start. You know that inverse of a square matrix is defined as adjoint of A by determinant of A. आप सभी जानते हैं कि जो मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होता है वो काफी टाइम टेकन होता है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक भी रहेगा। दो शॉर्ट ट्रिक हैं और एक यूजुअल मेथड है। हम लोग इनवर्स निकालने के 3 मेथड इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एक एग्जांपल से। ये आपके पास एक एग्जांपल है जो कि 2018 में आया है सिविल ब्रांच में, और कह रहा था कि फाइंड इट्स इनवर्स। फाइंड इट्स इनवर्स। हम लोग यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा उससे देखेंगे। मेथड फर्स्ट first of all we try to find its adjoint. So how we find the adjoint? First of all we take the first element 2 and exclude first column and second column, then take the determinants of this submatrix 3 1 and 2 4 and we write it 3 1 2 4, its determinant. Now we take second entry 3 and exclude first row and second column, then we take the entries 4 1 1 and 4 1 1 and 4, its determinant. Next we take the third element 4 and we exclude row first and third column, then we take the elements 4 3 1 and 2. यहाँ पे हम लोग एडजॉइंट निकालना चाह रहे हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग हर एक एलिमेंट को लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को एक्सक्लूड करते हुए जो सब मैट्रिक्स मिलेगी उस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग करस्पॉन्डिंग लिखते चले जाएंगे। इसी तरीके से आप अब क्या करिए, रो सेकेंड का लीजिए। वी विल टेक नाउ row 2. Here is element 4. We exclude first column and second row. Then we have a submatrix whose elements are 3 4 2 4. Again we take 3 and exclude second row and second column. Then we have a submatrix whose elements are 2
4 and 1 4. Next we take 1 and we exclude second row and third column. That is, we have a submatrix whose element is 2 3 and 1 2. Again, we take the elements of third row, that is 1, and we exclude first column and third row. Then we have a submatrix whose elements are 3 4 3 1. Next we take the elements 2 and exclude third row and second column. Then we have a submatrix whose elements are 2 4 4 1. Next we take the elements 4 and we exclude third row and third column. Then we have a submatrix whose elements are 2 3 4 and 3. Now we take the determinants of each element, each entry. So first entry, determinant of first entry will be 4 into 3 into 4, that is 12, minus 2, that is 10. 4 into 4 minus 1, 16 minus 1, that is 15. 4 into 2, 8, minus 3 into 1, that is 8 minus 3, 5. Now elements of second row, 3 into 4, 12, minus 2 into 4, 8, that is 4. 2 into 4, 8, minus 4, that is again 4. 2 into 2, 4, minus 3, that is 1. 3 into 1, 3, minus 3 into 4, 12. 3 minus 4, that is minus 9. 2 into 1, 2, minus 4 into 4, 16, minus 14. 2 into 3, 6, minus 12, that is minus 6. Now as we know that the adjoint have the sign like plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, प्लस. एडजॉइंट का जो एलिमेंट यहाँ पे हम लोग कोफैक्टर कहते हैं और इसका जो साइन होता है इसके अकॉर्डिंग हम लोग रखेंगे. सो फर्स्ट एलिमेंट शुड बी पॉजिटिव, सेकेंड शुड बी नेगेटिव, थर्ड शुड बी पॉजिटिव. नाउ रो ऑफ सेकेंड रो, द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Now elements of third row will be positive, that means minus 9. Here is negative, here is negative, so it will be positive, and here is positive and here is negative, so this will be negative. Now we take its transpose. When we take its transpose, that will be adjoint of A. So we take its transpose, that is 10 minus 15, 5 minus 4, 4 minus 1, minus 9, 14 minus 6. This will be adjoint of matrix A. So
सिंपल सा मेथड है कि इसका एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालें। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हम लोग हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर निकालेंगे। यहां पे हमने इसको निकालने की कोशिश किया है और उसका साइन जो होगा वो आपको यहां पे दिया गया है, इसके अनुसार चेंजेज होते जाएंगे। यानी यदि आप 2 एलिमेंट लेंगे तो 2 एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप रिमूव कर दीजिए, एक सब मैट्रिक्स मिलेगा, उसका डिटर्मिनेंट इसमें लिखा जाएगा और उसका साइन जो होगा इसके अनुसार चलेगा। इसी प्रकार हर एक एलिमेंट के अनुसार हमने यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया है और उसके साइन को क्या किया है इसके अनुसार यहाँ पे हमने इस वाले मैट्रिक्स में बैठा दिया है। अब एडजॉइंट क्या होता है, जिस तरह से जो हमें कोफैक्टर मिलते हैं उसका ट्रांसपोज ले लिया जाता है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब आपको क्या फाइंड करना है, इनवर्स। तो इनवर्स के लिए हम लोग जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। Therefore, the inverse of A will be adjoint of A by determinant of A. Now we have to find what will be its determinants. Determinant of A. Here is one more method that says that when you have adjoint of A, आपको किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट पता है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हम जो मैट्रिक्स दिया गया है उसका कोई एक रो ले ले। ये आपका मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आप कोई एक रो ले लीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग एडजॉइंट ऑफ ए का कोई एक कॉलम ले लीजिए। यहां पे आपका ये कॉलम है और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आएगा वो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। हमारी बात को फिर से ध्यान दीजिए। हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए व्हेन you have already adjoint of A is known. So here is one method to find the determinant of A that says that take any row of the matrices and corresponding column of adjoint of A and then multiply them and we will get the determinant of A. In our case, we can take the row of the given matrix. Here row of given matrix is 2, 3 and 4. That is first row. We take here 2, 3 and 4 and multiply it with the column. Here we take first row, so we take first column of the adjoint of A. So first column of adjoint of A is here 10, minus 15 and 5. Now we multiply 2 into 10, that is 20. 3 into minus 15, that is minus 45. 4 into 5, that is plus 20. This will becomes minus 5. So determinant of A equal to minus 5. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आपके पास एडजॉइंट पता है तो उसका डिटर्मिनेंट हम लोग कितनी आसानी से निकाल ले रहे हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप गिवन मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ले लीजिए और एडजॉइंट जो निकाले हैं उसका फर्स्ट कॉलम ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। सो वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू minus 5. Also we have adjoint of A. Therefore inverse will be A inverse equal to
adjoint of A, here is adjoint of A, we take it 10 minus 4 minus 9 minus 15 4 14 5 minus 1 minus 6 and divide by its determinants, that is 1 by minus 5. So now we multiply 1 by 5 in each entries, then we get here 10 by minus 5, that is minus 2, here minus plus 4 by 5, and here 9 by 5, minus 3, minus plus, this will be 3 plus 3, here minus 4 by 5, and here minus 14 by 5, now minus 1, here plus 1 by 5, and this will be 6 by 5. This will be your inverse of the given matrix. Now we take another method 2, to find the inverse of a given matrix of order 3 cross 3. We take here the same matrix which is given in first method, whose elements are 2, 3, 4, 4, 3, 1, 1, 2 and 4. Now here is one trick to find its determinants, sorry, its adjoint of A. So to find the adjoint of A, we take each column as given in the matrix, that is 2, 4, 1. Now second column 3, 3, 2. Now take third column 4, 1, 4. Now repeat first column, that is 2, 4, 1, and again repeat second column 3, 3, 2. Now again we repeat first row and write down it 2, 3, 4, 2 and 3. Once again repeat second row and write it down 4, 3, 1, 4 and 3. अभी तक हम लोग इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीख रहे हैं, जो कि काफी कम समय में निकलेगा। आप लोग इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, जो मैट्रिक्स दिया था उसके प्रत्येक कॉलम को हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इस फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे हम लोग रिपीट कर रहे हैं। ये फर्स्ट कॉलम को रिपीट कर दिया और सेकेंड कॉलम को रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमने सेकेंड कॉलम को रिपीट कर दिया। अब आपको जो फर्स्ट रो मिल रहा है, इस रो को भी हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे रिपीट करके देखिए, हमने यहाँ लिख दिया। सेकेंड रो के जो एलिमेंट आएंगे यहाँ पे, इसको भी हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से हमको एक यहाँ पे एलिमेंट्स मिल जा रहे हैं
अब इस सारे एलिमेंट्स का हमें एक सब मैट्रिक्स बनाना है, जिसका फर्स्ट रो एक्सक्लूड कर देना है और फर्स्ट कॉलम एक्सक्लूड कर देना है. नाउ वी हैव एक्सक्लूड फर्स्ट row and first column and take a 2 cross 2 submatrix and write its determinant here, that is 3 into 4, that is 12, minus 2 into 1 2, 12 minus 2, that is 10, right here. Now we take the operation column wise and write its determinant in row wise. So we make another 2 cross 2 submatrix here, that is whose elements are 2, 4, 3, 4. So what will be its determinant? Its determinant will be 2 into 4, that is 8, minus 3 into 4, that is 12, 8 minus 12, that is minus 4. Write it here row wise. The operation will be column wise and its determinant will be written in row wise. Again we take 2 cross 2 matrix whose elements are 3, 4, 3, 1. Now its determinants will be 3 into 1 3, minus 3 into 4, that is 12, 3 minus 12, that is minus 9. Now again we make another 2 cross 2 matrix here, 1, 4 and 4, 1, and take its determinant, that is 1 into 1, that is 1, minus 4 into 4, that is 16, 1 minus 16, that is minus 15. We write it here in second row, minus 15. And now we take another 2 cross 2 matrix here whose elements are 4, 1, 4, 2. So what will be its determinant? Its determinants will be 4 into 2, 8, minus 4, 8 minus 4, that is 4. And again we take 2 cross 2 matrix here column wise whose determinants will be 4 into 4, 16, minus 2, that is 16 minus 2, 14. Now we take another 2 cross 2 matrix here column wise whose elements are 4, 3, 1, 2, and its determinant will be 4 into 2, 8, minus 3, that is 5. Again we take 2 cross 2 matrix whose elements are 1, 2, 2, 3, and its determinant will be 3 minus 4, that will be minus 1. And next we take this 2 cross 2 matrix whose determinants will be 2 into 3, 6, minus 4 into 3, 12, 6 minus 12, that is minus 6. This will be your adjoint of A. यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट जो कॉलम था उस सारे कॉलम्स को हमने पहले लिखा, कॉलम 1 कॉलम 2 को राइट साइड यहां पे हमने रिपीट कर दिया था, उसके बाद रो 1 और रो 2 को भी हमने यहां पे रिपीट कर दिया था, उसके बाद रो 1 को और कॉलम 1 को डिलीट कर दिया. अब जो एलिमेंट्स बचे हैं उनमें से 2 क्रॉस 2 का आप मैट्रिक्स बनाते जाइए, कॉलम वाइज लेते जाइएंगे और उसके डिटर्मिनेंट्स को रो वाइज हम लिखेंगे. यहां पे हमने रो वाइज लिखते चले जाएंगे, तो जो मिलेगा वो हमको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा. अब आपको एक बार एडजॉइंट ऑफ ए पता हो गया तो क्या करना होगा, अभी हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. तो प्रीवियस मेथड में हमने बताया था
कि यदि आपके पास एडजॉइंट पता हो और मैट्रिक्स पता हो तो उसका डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, मैट्रिक्स का आप रो 1 ले लीजिए और एडजॉइंट का कॉलम ले लीजिए, कॉलम 1 ले लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो मिलेगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो आपको जो फाइंड करना है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स दिया गया है उसका रो 1 ले लेते हैं। तो आपको मैट्रिक्स यहां पे देखिए दिया गया है, ये आपका रो 1 है 2 3 4। Here we take 2 3 4. So this will be 2 3 4. This is row 1. Multiply the column of first column of adjoint of A, and first column is here 10 minus 15 and 5. When we multiply, then we get 10 into 2. This will be 20. 3 into minus 15. This will be minus 45. 4 into 5. That is plus 20. After simplifying, we get minus 5. So here again determinants of A will be minus 5, so, which is non-zero. We know that the inverse exists if it is non-singular. That is, the determinants of matrix should be non-zero. यदि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो व्हाट विल बी इट्स इनवर्स? इट्स इनवर्स विल बी इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज हियर whose elements are 10 minus 4 minus 9 minus 15 4 14 5 minus 1 and minus 6, and its determinant is minus 5. So we simplify it. Now its interest will be 10 divided by minus 5. That will be minus 2. 4 by 5. Next interest will be 9 by 5. Here 3. Here minus 4 by 5. And here minus 14 by 5. Here 1 minus 1. And here plus 1 by 5, and here plus 6 by 5, which is again same answer which is find in method first. यहां पर भी हमारा इनवर्स सेम आ रहा है, आप देख सकते हैं 2 minus 2 4 by 5 9 by 5, ये जो आ रहा है इनवर्स वो भी पहले मेथड से जो हम लोग निकाले थे वो सेम आ रहा है। पहले मेथड से भी हमने यहाँ पे ऊपर निकाला था, आपको दिखा सकते हैं हम लोग। ये आपका आया था जो कि सेम है। तो इस मेथड में हमने क्या किया, एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट निकालने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट था, जो कि काफी कम समय में आप इसको निकाल सकते हैं। एक बार एडजॉइंट आपको पता हो जाएगा तो एडजॉइंट के हेल्प से ही आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कैसे? मैट्रिक्स का आप रो 1 ले लीजिए और एडजॉइंट का कॉलम 1 ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मिलेगा वो आपका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो देखिए कितने कम समय में आपको डिटर्मिनेंट भी मिल जाएगा। अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट रख लीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका इनवर्स मिल जाएगा। नाउ वी find the inverse of the matrix of order 3 cross 3 by another method. First of all, we find the adjoint of A. How? Here, to find the adjoint of a 3 cross 3 matrix, we use C
RLC method. It means C stand for center, R for right, L for left, and again C for center. It means that we have start with center. Center element is here 3, right? 3. Now we take element 2 and write it in row 1. Again take element of that column, that is 3, and again we reach at starting point, that is 3. हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग सेंटर एलिमेंट ले रहे हैं. सेंटर एलिमेंट यहाँ पे 3 है, हमने 3 लिख दिया. उसके बाद उसके जस्ट बिलो लाइन पे आएंगे, वहां का एलिमेंट लिखेंगे वह 2 है, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया. फिर उसके बाद आप सबसे फर्स्ट रो में चले जाएंगे, वहां पे एलिमेंट 3 है, इस 3 को हमने लिख दिया. फिर अगेन वहां से फिर सेंटर एलिमेंट पे आ जाएंगे, तो अगेन वह 3 है. इस तरीके से हम लोग एक पहला रो बनाएंगे. ठीक है. नाउ अगेन सेंटर, आफ्टर सेंटर वी टेक राइट साइड, वी मूव राइट साइड. राइट साइड का एलिमेंट हम लोग यहां पे लेंगे 1, that is 1. After 1 we take the element 4. After 4 we goes to row 1 and take the element 4, and again we end with starting point, that is 1. यहां पर भी हम लोग सेंटर के बाद राइट चलेंगे. राइट का जो सेंटर एलिमेंट है पहले उसको लिखेंगे, यहां पे 1 है. 1 के बाद उससे नीचे आएंगे, नीचे वाले लाइन में यानी थर्ड रो में, और वहां का एलिमेंट लिखेंगे 4. 4 हो गया. 4 के बाद फर्स्ट रो में जाएंगे, फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे, यहाँ पे 4 है, और अगेन हम पहुंच जाएंगे जहां से स्टार्ट किए थे यानी 1 पे. तो ये हमने 1 लिख दिया. फिर हम स्टार्ट करेंगे, सेंटर हो गया, राइट हो गया. अब कहां पे आना है, एल. एल मीन्स लेफ्ट. अब लेफ्ट वाले कॉलम पे आ जाना है आपको. लेफ्ट वाले कॉलम का आपको सेंटर एलिमेंट ढूंढना है, वो क्या है 4, that is 4. After 4 we move down and take the element 1. After that we move to the first row and take here element 2, and after 2 we reach at the starting point, that is 4. So यहां पे हमने फिर वही काम किया, लेफ्ट के बाद चला है. लेफ्ट के बाद से हमने लेफ्ट कॉलम में पहले सेंटर एलिमेंट ढूंढ लिया. सेंटर एलिमेंट यहाँ पे आपका 4 है, हमने 4 लिख दिया. 4 के बाद 1 लिख दिया. 1 के बाद फर्स्ट रो में हम चले जाएंगे, यहाँ का एलिमेंट 2 है, 2 लिख दिया हमने. फिर 2 के बाद हम लोग यहाँ पे 4 पे आ जाएंगे, जहां से चले तो वहां पे आ जाएंगे, ये आपका 4 हो गया. अगेन फिर हम लोग कहां पे आएंगे, सेंटर वाले कॉलम पे आएंगे. तो सेंटर वाला कॉलम आपका फिर कहां से, उसका सेंटर एलिमेंट ढूंढेंगे, वो हमारा क्या है 3. फिर 3 के बाद हम लोग उसके नीचे वाले लाइन पे यानी 2 के बाद हम लोग ऊपर चले जाएंगे फर्स्ट रो में यानी 3 के बाद जहां से चले थे वहां पे फिर पहुंच जाएंगे यानी लास्ट में 3. तो ये जो फर्स्ट रो है वही आपका यहाँ पे रिपीट कर जाएगा. तो यहां से हमको एक इस तरह से एक अरेंजमेंट करना है. Now after making such arrangement we take the determinant of 2 cross 2 matrices, that is determinants of these 2 cross 2 matrix, and write here first element, that is 3 into 4 minus 2 into 1. 3 into 4 means 12 minus 2, that is 10. In this method the operation
if you perform your operation column wise, then the result value also will be right in column. So next integers will be determinant of this 2 cross 2 matrix, that is 1 into 1 1 minus 16, that is minus 15. Again we take this 2 cross 2 matrix and take its determinants. 4 into 2 8 minus 3, that is 5. Now we take second 2 cross 2 matrix and find its determinant, that is 2 into 4 8. Here we correct it, here should be 3, because we start from 3 2 3 and 3, so here should be 3. Okay, now it's correct. Here is 3. यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, अब ये ठीक है. Then we take the determinants of this matrix, that is 2 into 4, that is 8 minus 12, that is minus 4. Now take this 2 cross 2 matrix and find its determinant, that is 4 into 2 8 minus 4, that is 4. Again we take this 2 cross 2 matrix, 1 into 3 3 minus 4, that is minus 1. And now we take third column and we take its determinant, that is 3 into 1 minus 4 into 3, that is 3 minus 12, minus 9. Now take this 2 cross 2 matrix and find its determinant, 4 into 4, 16 minus 2, 14, and take this 2 cross 2 matrix and its determinant will be 2 into 3, 6 minus 12, that is minus 6. This is your adjoint of A. यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने केवल क्या किया, एक छोटा सा मेथड लगाया, CRLC मेथड. CRLC का मतलब सबसे पहले आपको सेंटर से स्टार्ट करना है, उसके बाद सेंटर से स्टार्ट होने के बाद नीचे आएंगे लाइन पे, यानी 2 लिखेंगे, फिर ऊपर जाएंगे ऊपर वाली लाइन पे, फिर सेंटर पे आ जाएंगे. इसी तरह हम लोग हर एक कॉलम को बना लेंगे और 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स को कॉलम वाइज लिखेंगे, तो उसके डिटर्मिनेंट को भी हम लोग कॉलम में ही लिखेंगे. यदि आप रो वाइज कर रहे हैं तो उसके डिटर्मिनेंट को रो वाइज लिखेंगे और ये आपका एडजॉइंट मिल जाएगा. नाउ व्हाट विल बी इट्स डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, हमने आपको बताया था शॉर्ट मेथड की, यदि आपके पास मैट्रिक्स पता है और उसका एडजॉइंट पता है तो मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ले लीजिए, यानी यहां पे फर्स्ट रो है 2 3 4 और एडजॉइंट का फर्स्ट कॉलम ले लीजिए. तो ये एंट्री है 10 माइनस 15 और यहां पे 5. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो मिलेगा वो आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा. तो 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 15 माइनस 45, 4 इंटू 5 that is 20, and we solve it and get minus 5. So determinant of A is again minus 5. Now what will be its inverse? Its inverse will be, therefore inverse will be 1 upon determinant of A, that is minus 5, and adjoint of A. Adjoint will be 10 minus 4 minus 9 minus 15 4 14 5 minus 1 and minus 6. After simplifying we get
here -2, 4/5, 9/5, 3, -4/5, -14/5, -1, 1/5 and 6/5. Again here the inverse is same. तो अभी तक हमने क्या देखा, आपको 3 मेथड बताया इनवर्स निकालने के। ये 3 मेथड हैं आपके इनवर्स निकालने के। एक जो चौथा मेथड है वो है आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जो कि काफी बड़ा जाता है। मैं उसके लिए रिकमेंड करूंगा जो मेथड 4 है, मेथड 4 वो है आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। वो काफी टाइम टेकन है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग उसको यहाँ पे 3x3 के लिए यूज मत कीजिएगा। 3x3 के लिए आप लोग मेथड सेकेंड या मेथड थर्ड यूज करिएगा। ये काफी सिंपल है। मेथड 4 जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यदि आपका मैट्रिक्स ऑर्डर 4x4 का है तब वहां पे ये यूज किया जा सकता है। 4x4 के लिए अभी तक कोई मेरे पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो वहां पे एलिमेंट्री मेथड यूज करिएगा। नाउ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, यदि आपके पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। इफ वी हैव इनवर्स of 2x2 matrix. Suppose we have a matrix whose elements are A, B and C, CD. Then what will be its adjoint? Adjoint of A equal to, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, just interchange the diagonal element. Interchange the diagonal element, that is D and A. We change here, interchange A and D diagonally. और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है जैसे B और C, इसके केवल साइन चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे C भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये आपका एडजॉइंट मिल गया। तो इसमें क्या है, आपको B और C में केवल साइन चेंज करना है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो AD माइनस BC। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको यहाँ पे मैं 2x2 का मैट्रिक्स ले लूं, यदि 2 1 4 3 ये आपका एक 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स क्या होगा? इनवर्स होगा आपका, जस्ट इसका एडजॉइंट निकालें। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा? इंटरचेंज 2 and 3, 3 will be here and 2 will be here, and change the sign of other element, that is it will be -1, it will be -4, and what will be its determinant? Determinant will be 2 into 3, that is 6, minus 4, that is 2. After simplifying we get here 3/2 minus 1/2 minus 2 and 1. This is your inverse of A. So in next lectures we will try to find the rank of the matrices. Rank of the matrices. Okay, thank you.